Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Let me welcome you to session number 43 of knowledge management. जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे लास्ट सेशन में शेयर किया कि हाउ पीपल लाइक यू, मैनेजर्स लाइक यू, प्रोफेशनल्स लाइक यू in Pakistan, working in Pakistani companies, how can they combine individual knowledge bases as a personal capital to make a knowledge base of the organization, or individual departments, इसको हमने नाम दिया था knowledge clusters का, और फिर the knowledge of making a product or a service one and a knowledge of making a product or service number two. यानी lesson learned while making product one, lesson learned while making product two. देखिए ट्रेडिशनली तो ये होता है, रेफ्रिजरेटर बनाने वाले और एयर कंडीशनर बनाने वाले, उनका आपस में कोई कभी इंटरेक्शन ही नहीं होता. कैफेटेरिया में, कंपनी के कॉरिडोर में, कंपनी की पार्किंग लॉट में तो इंटरेक्शन होता है. कंपनी के बारे में गुफ्तगू भी होती है, सियासत के बारे में भी गुफ्तगू होती है, कंपनी के बॉस के बारे में भी गुफ्तगू तो होती है. अब हम ये लर्न कर रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू है, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू कोलैबोरेशन, वो कैसे होगी. तो हमने लास्ट सेशन में फिर ये लर्न किया कि वो ऐसे होगी कि इफ knowledge workers who are making air conditioners, knowledge workers who are involved in making refrigerators, can they have a dialogue together? How can they come up with a design of a product, second or third product rather, product A and product B, which can be given to the R&D department to come up with a prototype, and maybe then as a business case to be given to the chief executive officer to look into it, or to the head of the marketing to see where the market is. So you earn your fortune out of the idea. ये कल्चर तो फिर देखिए डेवलप करना होगा, ऐसे तो नहीं होगा. अगर कल्चर ये हो कि डिपार्टमेंट ए के लोग डिपार्टमेंट बी के साथ कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, गुफ्तगू कैसे नहीं करेंगे, गुफ्तगू तो हो रही होती है. आप समझते हैं कि गुफ्तगू नहीं करेंगे लोग, इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि कैफेटेरिया में, वाटर कूलर के ऊपर, कॉरिडोर के ऊपर, पार्किंग लॉट में क्रिकेट खेलते हुए गुफ्तगू तो करते हैं लोग. अब उस गुफ्तगू को, उस कम्युनिकेशन को, उस फीलिंग को, उस डायलॉग को हम क्रिएटिवली कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी सेड दैट लेट्स ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटीज. तो आइए फिर लर्न करते हैं कि ये जो नॉलेज कम्युनिटीज हैं, इनका क्या रोल है, और जो नॉलेज बेस्ड कंपनीज हैं, क्या वो इसको इंपॉर्टेंस देती हैं? Yes, they do. And let us see then what kind of communities are there. But please keep in mind these the word community itself. Quality management के अंदर याद है हमने concept learn किया था quality circle का, वैसा ही concept है ये. Informal but very productive. Let us see then what kind of communities can be made or are there which are already working and established, and the management specialists and consultants and the CEOs of successful companies, how they are exploiting and exploring new markets, new products, new technologies on the basis of communities. हमने लास्ट सेशन में कुछ इन कम्युनिटीज का जिक्र किया, ये कम से कम वेल नोन है. कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, community of practice, issues driven communities, and communities of learning.
लर्निंग तो हो रही होती है, गुड एंड नॉट सो गुड. हाउ कैन वी make a community which is ready to learn from each other, knowledge sharing, learning to generate new knowledge, and learning to create a new organization, learning organization. तो आइए फिर वन बाय वन इनको लर्न करते हुए कम्युनिटी पर्सपेक्टिव के अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा, कम्युनिटी का लफ्ज बजाते खुद आपको यह बता रहा है, वी आर कम्युनिकेटिंग टू बी वन. कम्युनिकेशन यूनिटी. We are communicating because we are one. Let me start community of one. मैं अपने अंदर 30 मार खाऊं, आप होंगे जी, बिल्कुल होंगे, हम तो इनकार नहीं कर रहे. So community of one, I'm communicating to myself. Here we are talking an organization. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक कम्युनिटी है ना. कैन दे ऑल कम्युनिकेट टुगेदर टू बी वन? यहां तो हम कहते हैं जी मैं मार्केटिंग में काम करता हूं, मैं फाइनेंस में काम करता हूं, मैं आईटी में काम करता हूं, मैं प्रोडक्शन में काम करता हूं, मुझे क्या कंसर्न है भाई, आपके यहां क्या हो रहा है? कंसर्न होना चाहिए. तभी इसका मतलब यह होगा कि वी आर कम्युनिकेटिंग टू बी वन सो दैट वी कैन डील टुगेदर as a one organization. Deal with whom? Deal with the customer of the organization. देखिए, अगर आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, मैं पब्लिक सेक्टर की बात करता हूं, आप इंटरनल रेवेन्यू में काम कर रहे हैं, आप टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, आप इंटरनल मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप आईटी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के टीवी में काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में काम कर रहे हैं. आप काम तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी सिटीजन के लिए कर रहे हैं ना. कैन वी कम्युनिकेट ऑल टुगेदर एज वन? वो जो आप बाजुकात सुनते हैं ना कि नहीं जनाब ये तो देखें, ये तो आपको पुलिस वालों से बात करनी चाहिए, ये आपको फायर डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए, ये आपको टैक्स डिपार्टमेंट से बात, ये तो इससे तो मेरा कोई कंसर्न ही नहीं, आपको जिला नाजिम से बात करनी चाहिए. इसको कहते हैं वी आर पासिंग ऑन द ब्लेम्स टू द अदर डिपार्टमेंट्स, नोबडी इज देयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहां हम ये लर्न करना चाह रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी ये करता हूं कि इसको लर्न कीजिए कि जब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, you are responsible. Information, when it comes to you, it makes you responsible. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं किस चीज के लिए. Responsibility means now you will act and act smartly. हां, मुझे ये भी कहने दीजिए फिर कि if your boss, your colleague, let me also say at home, if the father doesn't want to share the information with the son, communicating, how can the son be responsible? Now, please tell me. Son or daughter can only be responsible about the welfare of the family. The family is also an organization. आप कहेंगे नॉलेज मैनेजमेंट में मैं फैमिली कहां से ले आया? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फैमिली इज एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन की? 2 and more than 2 people working together to achieve certain goals. So if the father or the mother doesn't share the information with the son or the daughter, how can son and daughter be responsible to think about the future welfare of the family? Same is the case here. If marketing people do not share the information with production people, if the quality people do not share the information with the production people, if the inventory people, storekeeper, warehouse people do not share the delay
in deliveries or the arrivals of supplies with the production people. Now, you please tell me how the production planning can be made optimum so that we make sure that the customer gets the product on time. Customer तो एक ही है. तो हम ये लर्न करना चाह रहे हैं नॉलेज मैनेजमेंट में. Information should be supplied, information should be provided, information should be made available to the concerned person, whoever so is the concern. और जितना उसका कंसर्न है उसको उतनी इंफॉर्मेशन दी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारी कंपनी की, सारे मर्जर्स की, सारे एक्विजिशंस की, सारी पब्लिक सेक्टर में इंटरनेशनल लेवल पे जो डायलॉग हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन आप सारे लोग नहीं. बट let the right information be available with the right people at the right time so they make right decisions. यही knowledge management है. We are talking, communicating to be one. एक हो जाएंगे तो बात बन जाएगी. मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइजेशन से अब सोसाइटी लेवल पर लेकर चलता हूं. सोसाइटी से नेशनल लेवल पर लेकर चलता हूं. नेशन से ग्लोब के लेवल पर आप अपने आप को सोचिए, फिर ग्लोब से ऊपर उठिए, यूनिवर्स के लेवल पर सोचिए. यूनिटी इज ऑलवेज बेटर. आपने सुना होगा ना, यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनिटी इज पावरफुल. हियर वी आर लर्निंग टू डेवलप यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. ठीक है, तो आइए फिर कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस की बात करें. Here is a community on the basis of work practices. It is a site of knowledge creation. प्रोफेसर नोनाका ने 14-15 साल जब काम किया मुख्तलिफ कंपनियों में और देखा कि वर्क प्रैक्टिसेस की बुनियाद पर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, असेंबलिंग प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, अकाउंट रिसीवेबल प्रैक्टिसेस, payroll practices, HR, career development practices, so many practices. Customer handling practices, customer complaint practices, customer dealing practice, so many practices. Strategy making practices, strategy implementation practices, change management practices, decision taking practices, decision making practices, problem solving practices, conflict resolution practices, negotiation practices, you name it. Community of practice is a site of knowledge creation, if you think it like this. But it is informal. कोई इसका formal structure नहीं होता, कोई इसका reporting mechanism नहीं होता. प्रॉब्लम वहीं पे आता है जब आप इंसानों को मशीन समझने लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आप मशीन समझने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर. ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग दौर के लिए मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट थी. हमने मशीन के जरिए से प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया. यस, इट वाज अ रिक्वायरमेंट. वी डिड इट more than 50 years, more than 100 years. My dear students, my dear knowledge workers, my dear officials, my dear professionals, let's change now. Let's change our paradigm. When you speak of knowledge-based economy, and the knowledge is the property of the human, then mechanistic structure, machine structure should be modified and changed to human structure. A human being should look like more human. इंसानों को इंसानियत आनी चाहिए. अब कुछ बात समझ में आई होगी. इंसान एक्ट कर रहा होता है मार्केटियर के तौर पे, इंसान एक्ट कर रहा होता है सप्लायर के तौर पे, इंसान एक्ट कर रहा होता है बिजनेसमैन के तौर पे, इंसान एक्ट कर रहा होता है सेक्रेटरी के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे. कम्युनिटी के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे तो हैं सब, लेकिन बंदे बंदों की गुलामी से थोड़ा सा आजाद हो गए कम्युनिटी के अंदर. अब वहां बॉस और सबॉर्डिनेट नहीं है, बंदा और बंदा नवाज.
अब वहां सब लोग, सीईओ, मिडिल मैनेजर, फ्रंट लाइन मैनेजर, सब मिलकर कस्टमर को सेटिस्फाई, प्लीज, डिलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी. सो इट इज इनफॉर्मल, इट इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू शेयर द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज. डिजायर, ख्वाहिश. लेकिन अगर इस ख्वाहिश से पहले ही इस ख्वाहिश को किल कर दिया जाए, क्या कर रहे हो भाई यहां बैठे हुए, चाय पे वक्त जाया कर रहे हो, ये ईमेल क्या लिख रहे हो, चैटिंग क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें कहा, हु आस्क्ड यू टू डू दिस? कि जी मैं तो अपने कुलीग को ये वर्क प्रैक्टिस सिखा रहा था कि अगर अगले हफ्ते फर्ज कीजिए मैं ना आऊं तो कोई तो हो कि जो इस कस्टमर को हैंडल कर सके. Did you take permission from me? I'm the boss here. Well, yes, I know you are the boss, but I thought that if the customer called, there must be someone who knows about it. Desire. तो देखिए, अथॉरिटी, yes, I know you have the authority, लेकिन एम्पावरमेंट भी तो एक कॉन्सेप्ट है, ट्रस्ट करने का भी तो एक कॉन्सेप्ट है. आप ट्रस्ट कीजिए, एम्पावर कीजिए. हां, अगर वो आपकी कंपनी के लिए, आपके कस्टमर के लिए, आपकी स्ट्रेटजी के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए नुकसानदेह साबित होता है तो ना कीजिए. लेकिन अगर वो आपके कंपनी के लिए, प्रॉफिट के लिए, मार्केटिंग के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए फायदेमंद है, फिर भी आप अथॉरिटी के चक्कर में और बास बनने के चक्कर में उसकी बात ही नहीं सुनते. डिजायर. तो डिजायर इज टू सर्व द कस्टमर. So customer keeps on coming, customer keeps on giving profit. Well, that means then you promote then the culture of community. Community sets its own agenda, community finds its own shape. मुझे कहने दीजिए कि कम्युनिटी के अंदर फिर जनरली लोग वो आपस में मिलकर बैठते हैं इनफॉर्मल माहौल में, जिनकी केमिस्ट्री आपस में मिलती है. जब केमिस्ट्री आपस में नहीं मिलती ना, कस्टमर की केमिस्ट्री कंपनी की केमिस्ट्री से नहीं मिलती, कस्टमर नेवर कम्स बैक. बॉस की केमिस्ट्री सबॉर्डिनेट से नहीं मिलती, सबॉर्डिनेट नेवर कम्स बैक. Interaction between the two people, chemistry is very important. Let's then learn that they find their own shape when they interact with each other. Let them find, let them grow organically. Organic chemistry आ गई ना, chemistry of carbon, chemistry of life, chemistry of humans. Community is sustained by the interest and passion of the participants. आप कहेंगे ये इंटरेस्ट और पैशन, ये तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में एचआर वालों ने नहीं लिखा था. हां, नहीं लिखा था, तभी तो हम कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो है वो ख्याल रखती है. आप जरा सफर कीजिए किसी गोठ में या किसी विलेज में या किसी चक में, 400-500 घरों पे मुश्तमिल एक गांव, बाहर से कोई एक नया आदमी आता है, फौरन पता चल जाता है कौन आया है, एंड एवरीबॉडी इज रेडी टू हेल्प यू आउट. हां जी, कहां जाना है, किसके यहां जाना है. ये तो शहरों में हम घरों के अंदर बंद हो गए. इंफॉर्मेशन एक घर से दूसरे घर में नहीं जा रही, तो कम्युनिटी नहीं है. जब शेयर ही कुछ नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो यूनिटी कैसे आएगी. हम कहते हैं जी हम सिक्योरिटी एजेंसी. विलेज विजडम, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, विलेज विजडम मस्ट बी ब्लेंडेड विद द वेस्टर्न नॉलेज. वेस्ट एंड ईस्ट must be blended together to get the benefit for humanity. That is what knowledge says. It is not the property of East or the West. And it has been established now. I've read in many journals, even in West, people say village wisdom. अच्छा, wisdom किस बेस पे आती है? Knowledge की बेस पे. तो community जो है वो अपने आप को sustain करती है interest की बुनियाद पर, passion. क्यों आप ये काम कर रहे हैं जी? आप पूछ के देखिए अब्दुस्तार ईदी से, आप किस लिए, ये गवर्नमेंट बाद में आती है, आप पहले पहुंचे हुए होते हैं. फैशन. गोलियां चल रही होती हैं, आप पहले पहुंचे हुए होते हैं.
आपको फिक्र ही नहीं होती कि खाना कहां से खाएंगे, पानी कहां से, ट्रांसपोर्ट कहां से आएंगे. पैशन. As soon as he gets the information, he's there. Passion. He wants to serve the community. He thinks Pakistan as a whole is an organization and he wants to serve this nation. He wants to serve this society. Passion. तो पैशन के बगैर, इस जज्बे के बगैर, community and the society does not progress. All right, let's come back. Community are not goal driven. कोई फिक्स गोल नहीं होता कि हमने नेक्स्ट क्वार्टर में 10% प्रॉफिट, 10% प्रोडक्टिविटी, 10% परफॉर्मेंस, 10% प्रोडक्शन ऊपर लेकर जानी है, हायर लेकर जानी है. कम्युनिटी अपना गोल खुद डिटरमिन करती है. इस गोल से बढ़कर और क्या हो कि मुझे आपको हेल्प करना है, मुझे आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है जो आज नहीं, कल नहीं, अगले साल नहीं, 5 साल के बाद भी वो रेलेवेंट हो, आउट ऑफ द मार्केट ना हो, very relevant to the market. So you keep on getting the benefit for the years to come. Community of practice. I will make you learn practice. I'll make you know that practice. I'll make you learn that practice because you are member of my community, which will keep you relevant to the market, relevant to your career, relevant to your profession, relevant to your company, relevant to your office, relevant to your job for the months and years to come. Community of practice. It's a band of individuals who come together for some reason. ये reason कम है, जज्बा जुनू, और जज्बा जुनू हो तो छुए आसमां. किसी ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा. और जज्बा ही ना हो तो बस फिर तो बात नहीं बनती है. और जिन कंपनियों में वर्कर्स, एम्प्लॉइज, स्टाफ जज्बे के साथ काम करते हैं, बिलीव मी, Japanese workers, when they're working, they think of that customer who will be using their product. Let's give him the best of it. Let him be satisfied. When he uses my product, he must speak good about me. He must feel good about me. He must talk good about my country. Passion. तो क्या हम पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते? Yes, we can do. And I really felt happy when I saw that scissor in Australia made in Pakistan. I felt good. And it was being sold for $70. जबकि मुझे पता था कि वजीराबाद में शायद ये 20 रुपए की आती हो. But I was glad कि yes, someone in Wazirabad can make a scissor which can be sold in the markets of Australia. So if the culture is that bands of individuals come together for a reason and stay together for a reason because they want to add value, and the members obtain by associating with one another, they gain value by associating with one another and sharing common experience and knowledge together. क्या ये reason कम है कि we have a reason to be together? And let me mention here the community, which is a unique community in the history of humanity. People came from out of the city. They were not related to them, they were not known to them. एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं थे. And the history knows and tells us that because of one reason, because of one belief, they were made one community. और लीडर ने ये कहा, CEO, लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये कहा, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि उन्होंने ये फरमाया कि भाई देखो, एक आदमी इस गांव का, एक आदमी उस गांव का, आपस में जरा रिलेट हो जाओ. जो इस गांव वाला है वो उस गांव वालों को जरा कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिसेस सिखा दे. ये नए हैं, यहां की मार्केट को नहीं जानते, यहां की वर्किंग को नहीं जानते. ये आपस में मिलकर reason of unity, reason of communication is to be one. You help them out. एक मुहाजिर
एक अंसार। आप मुझे बताइए कितने ही मुहाजिरीन थे, क्या किसी ने अंसार से ये कहा कि यार जरा मुझे कुछ लोन दे दो, मुझे जरा अपनी दुकान पे बिठा दो, मुझे जरा ये आधे मुरब्बे दे दो, मुझे ये अपनी बिजनेस आधी करके मुझे दे दो? नॉट अ सिंगल वन। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा मुझे जरा मार्केट का रास्ता बताइए, कहां है, मैं जाके देखूं तो सही वहां कैसे बिकता है। और आज मुझे वो एक मुहाजिर याद आ रहा है कि जिन्होंने कहा कि जनाब मेरे अंदर ये स्किल मौजूद है कि मैं जिस ईंट को हाथ लगाऊं वो ईंट सोने की बन जाए। व्हाट डज दैट मीन? ये नहीं कि वो वाकई कोई जादू था उनकी हाथ में कि वो सोने की बन जाती थी। नो, ही सेड यू नो आई कैन लर्न दीज वर्क प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस स्किल, आई कैन टर्न द सैंड इनटू गोल्ड। That's what it is. They were communicating with each other with passion, with interest. They both should grow. The community should grow. The society should grow. And the word saw, in a very short period of time, मैं एक मूवी देख रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स में वो मूवी बनी थी, एक किसी टीवी कंपनी ने बनाई, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, एंड दे वर एक्नॉलेज, कुछ प्रोफेसर्स थे वो उस पर कमेंट्री दे रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा हिस्ट्री के अंदर यह बात सामने आई, और खास तौर पर उन्होंने 3 टाइम्स का जिक्र किया। द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, when they were living in Medina, the time of the Muslims when they were living in Spain, 12th century, and the time of the Ottoman Empire when the Muslims were ruling from Turkey. History की बात हो रही है ना। And they were चूंकि professors of some universities in United States, they were commenting on it. They were sharing this information that, you know, history have seen that no society was as prosperous, as profitable, as knowledgeable, as modern, as advanced as the societies of those 3 periods of history. They were very good businessmen. They had a knowledge of the market. They know how to serve the customer. They used to be called traders. They used to be called administrators. You name them, whatever. But they knew how to serve their community. They were creating new products, new markets, new technologies, because they were sharing their knowledge, they were sharing their experience, they were sharing their expertise. And believe me, they were tolerant to different cultures. मैंने उस मूवी में ये देखा, उन्होंने कहा कि जी बगदाद की यूनिवर्सिटियों में क्रिश्चियंस, जूस, हिंदूस, they were saying from India, they used to come and learn in the universities of Baghdad. बस फिर क्या था, हिस्ट्री के अंदर वो वक्त आया कि जब हलाकू खान और चंगेज खान ने उन यूनिवर्सिटियों को आग लगा दी। बहरहाल वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है। लेट्स कम बैक, कम्युनिटी। सो प्लीज लर्न हाउ टू कम्युनिकेट टू बी वन। स्ट्रेंथ इसी के अंदर है। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए, या ऑर्गेनाइजेशन में कोई लीडर जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग के बाद ये स्ट्रेटजीज बनाए और उसको इंप्लीमेंट करे, तो आज भी ये पैशन आसमान सितारे तोड़ सकता है। और पाकिस्तानी एज ए नेशन, दे हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोब और द मार्केट ऑफ साउथ एशिया or European Union or South America. So community of practice, generally speaking, they contain fewer members and do not have the same sense of urgency. Urgency नहीं है as compared to the issue driven community. अच्छा, ये issue driven community जो है मुझे सिर्फ एक किताब में मिली। वो किताब जो है एक कंपनी के बारे में लिखी हुई है, और मैं आपको चाहूंगा, मैं आपसे ये चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपनी के बारे में पढ़ें। मैंने मेंशन तो किया था इसके बारे में, बकमैन लैब्स, BUCKMAN लेबोरेटरी, वेबसाइट भी है उनकी www.buckman.com. That is the one I was talking about. When the father and elder brother died, how did the younger son stand up, change the paradigm? And working around different cultures, different languages, how they brought the wisdom of different cultures together
टू सर्व देयर कस्टमर्स, और कैसे फिर एक प्रोडक्ट से दूसरा, एक ही किस्म के प्रोडक्ट बनाते थे शुरू के अंदर, बट देन फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ. यही वो कंपनी है. एंड आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज टीचिंग द कोर्स ऑन नॉलेज मैनेजमेंट टू रीड कि ये वो कंपनी है कि इनको, अब चूंकि इनकी नॉलेज बेस भी थी, somebody contacted them. इनकी जो कंसल्टिंग प्रैक्टिस है, अभी मैं प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में, इनकी जो कंसल्टिंग प्रैक्टिस थी उनको किसी ने कांटेक्ट किया, और वो कंपनी थी जो सबमरीन्स बनाने वाली थी. कांटेक्ट करके इनसे पूछा कि जी हम सबमरीन्स बना रहे हैं, और सबमरीन ने चूंकि समुद्र की तह में सफर करना होता है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो मोटर्स हम यूज करते हैं वो लीक, उनका जो उनकी सील लीक कर जाती है. सो प्लीज हेल्प अस. क्योंकि केमिकल कंपनी डिलीवर करती है, और देखिए समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा नमक होता है, तो उन्होंने कहा जी वो सील का जो मटेरियल है वो भी केमिकल है ना, वो लीक कर जाता है, प्लीज हेल्प अस. एंड द सोल्यूशन केम. अब मुझे नहीं मालूम बकमन लेबोरेटरी ने कितने पैसे उसके चार्ज किए, बट द सोल्यूशन केम. कहां से सोल्यूशन आया? वो जो ग्रुप था उनका, जो सील के केमिकल को डील करता था, उन्होंने अपनी 80 कंट्रीज या 70 कंट्रीज जिनमें भी इस कंपनी के ऑफिसेज हैं, वो क्वेश्चन उन्होंने फ्लोट कर दिया. आंसर केम. और आंसर क्या था? उन्होंने कहा कि जनाब सबमरीन्स की मोटर्स नमक वाले पानी के अंदर उनको काम करना होता है, और हमने जो सील कार्डियोलॉजिस्ट को अब सप्लाई की थी, जो दिल का ऑपरेशन करते हैं और वहां पेस मेकर लगाते हैं. गौर से सुनिए जरा इस बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो भी तो एक छोटी सी मोटर होती है ना, जो दिल में लगाता है कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन सर्जरी करके वो एक छोटी सी मोटर लगा देता है, पेस मेकर. वहां भी सील होती है, और जो ब्लड होता है वो भी नमकीन पानी की तरह से साल्टी होता है. वो सील तो लीक नहीं करती. तो जरा उस सील का केमिकल देखिए कौन सा है, या सिलिकॉन, या जो जिस भी मटेरियल का वो बना हुआ है. And I think if you suggest that material to be used to make the seal of the motors to be used in submarine, I think it will work. And it did work. कितने thousands या millions उन्होंने चार्ज किए होंगे इस इंफॉर्मेशन के. Now you think about it. People are ready, community is ready to share the information. कहां से कहां की इंफॉर्मेशन? It works. और ये उसी वक्त होता है कि जब हम सब तैयार हों इस बात के लिए कि हमने मिलकर. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजी बोला करते थे, लेकिन जब लोगों से लोग पूछते थे, खास तौर पर मुसलमानों से पूछते थे कि भाई तुम ये क्या सुनते हो इस लीडर की बातें, वो तो एक ऐसी जुबान बोलता है जो आपको समझ में नहीं आती. आंसर एक ही होता था, whatever language he is speaking, I think he is speaking language of ours. We know he is talking truth. We believe in him. We have a trust in him. So we follow him. We became community of one. We got the objective. The objective was achieved. इस community की कोई urgency नहीं है. Community of practice, they set their own goal. Issue driven community जो Buckman Labs ने बनाई हुई हैं. Yes, they have their own set goals and time bound type of community. अभी उसकी भी मैं बात करता हूं. लेकिन community of practice take a longer and a slower look at development in their field, which can also be valuable to an organization in future. Issue driven community की जो मैं बात कर रहा था, और सोचिए कि जरा how can you develop that issue driven community in the organization. This is a group designed to take an action on a pressing issue, urgent issue, dynamic issue, which is a problem which needs immediate attention or an opportunity likely to be evaporating, emerging if it is not seized at once. ये opportunity चली जाएगी, evaporate हो जाएगी, कोई और ले जाएगा. तो हम फौरी तौर पर मिलकर
आइए फिर फैसला करें, इशू ड्रिवन। तो बकमैन लैब जो है, दे हैव एक्स्ट्रा कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको बहुत सारी कंपनियों में मिलेंगी। इशू ड्रिवन कम्युनिटी इसी कंपनी के अंदर है। इनफॉर्मल डायनेमिज्म और चेंज और ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में probably this is the best community organization can have. Focus is on responding as quickly, as rapidly as possible. This is where the action is required right now. तभी उन्होंने कहा ना जी कि within a week, within few days, the answer came. Issue driven community are the communities which will allow you to deal with dynamic situation, complex situation of the market. 21st century की organizations और markets, मेरा ख्याल है issue driven communities की demand ज्यादा है on a day-to-day basis, so we can do business better. They will be dealing with real issues of the organization which require fast action. These communities need to be open to everyone who can conceivably contribute to addressing the problems and opportunities which might arise. ऐसे लोग चाहिए जो innovative हों, ऐसे लोग चाहिए जो आंखें, दिमाग, दिल खुला रखकर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अच्छा देखिए, कंपनी भी किसकी है? कंपनी भी तो उन्हीं लोगों की है ना जो वहां काम कर रहे हैं। अगर ये स्पिरिट पैदा कर दी जाए कि भाई ठीक है, लेट दिस केक बिकम बिगर, you will get a bigger piece of cake. That's all what has to be made into a decision. Somebody has to make this decision. This company has done it. Buckman Laboratories. Chief executive has made this decision. Community of practice जो है, जो कि ये तमाम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलेंगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि अपने नॉलेज को ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. Knowledge is generated and contributed and shared collectively. Individuals could not achieve this on their own. You have to work collectively. रिलेशनशिप के अंदर अप्रेंटिसशिप की स्पिरिट होती है, मास्टर अप्रेंटिस, एंड मास्टर इज विलिंग टू लेट द अप्रेंटिस लर्न. ऑर्डिनरी एवरीडे एक्टिविटीज को यस दे डू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, बट इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव. ऑफ कोर्स full participation of all the members is required, but according to situation you can also work on the peripheries. Individual objective भी achieve होता है, group का objective भी achieve होता है, tacit objective भी achieve होता है, explicit objective भी achieve होता है. देखिए, individual level पर आपको community members से intuitive knowledge, skills and know-how मिल रहा होता है. explicit knowledge के perspective में concepts और knowing that का इल्म हासिल हो रहा होता है. ग्रुप के बेस पर एक्सप्लिसिट नॉलेज आपको स्टोरीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस की शक्ल में सामने आ रही होती है. स्टोरी टेलिंग इज नथिंग मोर देन अ बेस्ट प्रैक्टिस हु इज शेयरिंग समवन विद यू. विलेज विजडम, देखिए ना, गांव में अमूमन गांव के बड़े कहानियों के अंदाज में बहुत कुछ सिखा जाते हैं. स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन नॉलेज मैनेजमेंट. हाउ कैन माई बॉस शेयर his personal story? How can my boss share story of a customer, story of the past? How can my boss share a story where the risk was averted and a best practice is delivered? Tacit knowledge के perspective में work practices, let me show you how to do. Brainstorming, a group is showing how to do the things. तो community of practice के बहरहाल ये फायदे तो हैं. Strategies can be driven, न्यू लाइन्स ऑफ बिजनेस कैन बी स्टार्टेड, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, पिछले सेशन में भी शेयर किया था. प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व क्विकली. बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन साइट टू अनदर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. यू डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स, क्रॉस कल्चरल स्किल्स, एंड you help companies recruit and retain talent. And believe me, recruiting talent and retaining talent is a very important aspect in 21st century. ये वो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं बकमन लैब्स के हवाले से. उन्होंने कहा जी हमने कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस भी बनाई हुई है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट भी बनाई हुई है, कम्युनिटी ऑफ इशू ड्रिवन कम्युनिटीज भी बनाई हुई हैं, और हमने कम्युनिटीज ऑफ लर्निंग भी बनाई हुई है. 4 कम्युनिटीज.
गोया हम कम्युनिटीज के कल्चर को प्रमोट करते हैं। ये एक ई बुक है, वेब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़िएगा बकमैन लैब्स के वाले, पूरी किताब है जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ने लिखी है। वो जी इसी बेस पर, क्योंकि हमारे पास 4 कम्युनिटीज हैं, हम नए प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं नॉलेज शेयरिंग से। जरा देखिए कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं और कैसे वो बनाते हैं। उनका जी हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस की डेटाबेस बनाई हुई है, कैसे सबमरीन के इंजन की सील लीक होगी तो किस मटेरियल की सील बनेगी, कहां से इंफॉर्मेशन आई, कार्डियोलॉजिस्ट ने दिल के अंदर एक ऐसी मोटर लगाई कि जिसकी सील बड़ी अच्छी तरह से काम करती है, वो मटेरियल यूज कर लीजिए। लेसन लर्न इन वन कंट्री, इन वन कंपनी, इन वन साइट कैन बी यूज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लर्निंग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, लेट द पीपल यूज दैट ऑन देयर ओन टाइम। एप्लीकेशन डेटाबेसेस, यस, देखिए किस किस्म की चीजें इनके पास अवेलेबल है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टाइल, साइकिल की बात नहीं हो रही, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टाइल, स्टाइल कैसे चेंज होगा प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का स्टाइल अगर सीखना हो किसी से तो एप्पल से सीखे। बट हियर इज अनदर कंपनी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये केमिकल्स की बिजनेस में। कॉर्पोरेट रीपोजिशनिंग, आप कहेंगे जी ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तय करना चाहिए या सीईओ के तय करने का काम है, या सीईओ सीआईओ जितने सी लेवल के मैनेजर्स हैं को ये कि हम अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में कैसे रिपोजिशन करें। वेल यस, बट हियर इज अ कंपनी who is asking their employees, their knowledge workers, think about it, how should we reposition ourselves at the corporate level, not at the business level, at the corporate level. New organization modules, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल 10 साल पहले सही काम कर रहा था, रिपोर्टिंग कैसे हो रही थी, 20 और 22 लेवल थे, अब 10 होने चाहिए, अब 5 होने चाहिए, अब 3 होने चाहिए, अब नेटवर्क स्ट्रक्चर होना चाहिए, अब स्टार स्ट्रक्चर होना चाहिए, अब हाइपरलिंक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स, या आप ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर मुख्तलिफ आप जो स्ट्रक्चर और मॉडल्स, मैकेनिस्टिक मॉडल, क्वालिटी मॉडल, कल्चरल मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, कौन सा मॉडल कौन तय कर रहे हैं? आप कहेंगे जी ये तो सीईओ के तय करने का काम है। नहीं साहब, ये नॉलेज वर्कर्स तय कर रहे हैं। स्पीकिंग एंड कंसल्टिंग एज ए न्यू प्रोडक्ट, ये है वो फोरम कि जिन्होंने, अच्छा फिर आप कहेंगे कि सील का तो उन्होंने बताया, जिन्होंने सील का नॉलेज दिया था, ये सील का नॉलेज दिया तो इनको क्या मिला? बिल्कुल जनाब, उस केक में से उनको भी हिस्सा मिला जिन्होंने वो नॉलेज शेयर किया। दिस डिसीजन हैज टू बी मेड। तो प्लीज टेक ए लुक हाउ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज when it is being taken care as an asset at the company level, at the CEO level, really bringing larger size of the cake for the whole workers at the international level. We are living in a global world. Can the community be made virtual? Yes. ये जो बकमैन लैब्स की मैं बात कर रहा हूं, they have a virtual community. IT कंपनीज में तो बहुत सारी वर्चुअल कम्युनिटीज होती हैं, प्रोफेशनल भी होती हैं, सॉफ्टवेयर की भी होती हैं, नेटवर्क्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जिन मुख्तलिफ वर्चुअल कम्युनिटीज की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पीपल इन ए टीम, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स, वन पर्सन मैनी टीम्स, ही इज ए मेंबर ऑफ मैनी टीम्स, डायनेमिक, एडाप्टिव, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज, मल्टीपल लीडर्स फॉर डिफरेंट रोल्स, virtually you are interconnected. But please keep in mind, these communities are built on trust and understanding. लेकिन अगर सन और फादर में और डॉटर और मदर भी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो फैमिली, वर्चुअल तो बहुत दूर की बात है, फिजिकली तौर पर भी एक कम्युनिटी नहीं होती, एक यूनिटी नहीं होती। Here we are talking of a company, hundreds of people working. Here we are talking of an organization based in United States, working in Brazil, India, Pakistan, Dubai, Singapore, Australia. Different cultures, different languages, different habits, how they are tolerating each other. Understanding and trust. Things are possible. Rules of engagement is simple. As long as
you have an information, giving it out as a trust, passionate, desire, interest, ready to share. अब देखिए फिर टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में आप ये कहते हैं कि जी फिर आप अपने FTPs को, ईमेल को, IT के स्टूडेंट्स वंस अगेन, FTP सर्वर, ईमेल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, all these servers, all these networks are ready to help these communities. Community of learning, rather communities of learning. इसके बगैर तो बात नहीं बनेगी. और इस कंपनी के अंदर ये सारी communities available हैं. If you read the literature of that company, they have their website, lot of literature is available. You can take some lesson and learn some lesson from them. इनका कहना ये है जब तक learning नहीं होगी बात नहीं बनेगी. And we do take care of the learning of all the people, all the customers. We consider all of them, all types of customers as part of our community member. इसलिए कि 21st century के अंदर भी हम ये समझते हैं कि the rate at which individuals and organizations will learn, it may become the only sustainable competitive advantage. So learning will provide you a competitive advantage because the hallmark of tomorrow's most effective organization will be their capacity to learn. नोट कीजिएगा इसको, इंडिविजुअल लेवल पर भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी. व्हाट इज योर कैपेसिटी टू लर्न? व्हाइल टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, प्लीज डोंट टेल मी these are our weaknesses. I know we are living in South Asia. I know we are living as a developing country. गौर से देखिए स्लाइड को, मैं यहीं से अगला लेक्चर शुरू करूंगा. मुझे ये सारी वीकनेसेस ना बताइए, प्रॉब्लम्स. आई एक्सपेक्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम यू. मैंने कुछ सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं. पैराडाइम शिफ्ट. लेट्स लर्न. If this is my weakness, let's take this weakness as a constraint. Let's learn how to work in this weakness to convert as a strength. आप मुझे ये कहेंगे, मैं पहली बात आपसे शेयर कर लेता हूं. आप मुझे ये कहेंगे कि जनाब बहुत सारे लोगों के पास, अक्सरियत हमारी गांव में रहती है, रेफ्रिजरेटर अफोर्ड ही नहीं कर सकते. Well, that's good. एक कंस्ट्रेंट, एक वेरिएबल, एक चैलेंज, एक वीकनेस, डिपेंड करता है आप इसको कैसे. मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं नॉलेज वर्कर, पाकिस्तानी, पैशनेट, इंटरेस्टफुल, knowledgeable, ready to solve problems of the organization and the families and the country as a whole. Okay, lack of refrigeration. Well, can you come up with a method of storage? देखिए ये तो हमने लर्न किया था ना कि रेफ्रिजरेशन ने फूड सेक्टर कंपनीज के लिए एक नई मार्केट, एक नया मॉडल पेश किया. That was an opportunity. Here we are going from the cities to the villages. जहां कहते हैं जी कि 60-70% पॉपुलेशन हमारी रहती है. बहुत सारे गांव में, बहुत सारे घरों में तो वहां पर भी रेफ्रिजरेटर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव हैं जहां बिजली नहीं है. Let's think of. Believe me, I was glad when I saw that little fan coming out of China. छोटी सी बैटरी उसमें लगी हुई है, चार्ज कर लीजिए, 4-5 घंटे चलेगी. लेकर कजाफी स्टेडियम में या कराची के किसी स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने चले जाइए, 3-4 घंटे बगैर बिजली के वो पंखा चलता है. हल्का सा है, हैंडी सा है, आप पकड़ के अपने सामने रखिए, अपने आप को हवा दे लीजिए या अपने साथी के साथ बैठ के हवा ले लीजिए. हैंडी. तो वीकनेस जो है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना सीखिए. टेक द डाटा, टेक द इंफॉर्मेशन, यूज योर इंट्यूशन एंड इनसाइट. तो अगर आप फूड सेक्टर कंपनी हैं, उसमें काम कर रहे हैं, कैन वी कम अप ए मेथडोलॉजी ऑफ स्टोरिंग, a process of storing of food items which does not require refrigeration or processed food. मैं canned food की बात नहीं कर रहा हूं. Ready to eat, ready to be stored. You don't require refrigeration. सोच के आइएगा. अगले लेक्चर में स्लाइड को जरा गौर से पढ़ के आइएगा. ठीक है, ये वीकनेसेस हैं. Let us
inform ourselves that we don't take these weaknesses as weaknesses. We take these weaknesses as a challenge. And as a professional manager, we will come up with a solution for this part of the world. Developed country के अंदर solution लाने का मजा कुछ और है. Developing country के अंदर रहकर जब situation complex है, वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, इनकम लेवल लो है, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि मंथली इनकम या डेली इनकम मुझे कहने दीजिए $1 ऑन द एवरेज कम है. गांव में रहने वाले लोग, अक्सरियत आबादी, डेली इनकम $1, $2 per day. How to come up with a solution for them? Challenge. We will learn, and on the basis of learning, हमने कहा था ना, capacity to learn. On the basis of learning, we will be a good knowledge worker to develop a competitive advantage, personal level पर भी, professional level पर भी, company के लिए भी. So we will learn in the next session then how can we become a learning organization and a learning knowledge worker, so we are in demand in the years to come. Are you ready for that? Are you ready to learn? Are you ready to increase your capacity? आपके बस में है. दिल बड़ा कीजिए, दिमाग में 7 समुंदर को समो लीजिए, और दिल दरिया समुंदरों डूंगे तो कौन दिलां दियां जाने हो. 7 समुंदर उसके 14 तबक दिले दे अंदर, 7 नहीं जनाब, 14 तबक दिले दे अंदर. तो सवाल यह है कि हाउ डीप इज योर सी of knowledge and how ready you are to learn more knowledge so that you can be ready to compete and to survive and to thrive in the years to come. So we'll talk about it and the concept of learning organization, which was given to us by Professor Peter Sanjay. So I'll see you in the next session. My dear students, ladies and gentlemen, my dear knowledge professionals, I'll see you in the next session, and until then, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.